Hello, my dear friends. I'm Professor Waim Khan, and we are back with our properties, structure of materials, and strengthening mechanism. And this is the part 2 of this unit. And in today's video, we will study the structure of metals, the various types of structures of metal. What is the meaning of unit cell? What is the meaning of space lattice? And their examples. Now before beginning to our lecture, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. So let us begin. Structure of metals. So every metal or every material has some structure. Okay. Now basically the materials structure is of two type. One is of your amorphous type, where no predetermined or no fixed structure is available there, and there is then one crystalline structure. When material crystallizes or when material solidifies, it forms a specific or a fixed type of structure. Now most of the crystal structures are having specific shape, they have a specific geometry. So first we will study what is the meaning of a crystal structure. So a regular repetitious pattern in which atoms of a crystalline material arrange themselves is known as a crystal structure, or it is also ordered arrangements of atoms, ions or molecules in a crystalline material. Whenever atoms, ions or some molecules arrange themselves in a predetermined, in a fixed repetitive pattern and in a fixed order, then this particular arrangement of atoms, ions or molecules is called as a crystal structure. Now this crystal structure is very important for us because most of the material properties depend on these crystal structures. Okay. Now because whenever atoms are arranging themselves, they are sharing something, they are connecting with each other, so the properties of these materials vary according to the arrangement of these atoms or ions, you can say. So therefore it is very important to study a crystal structure of a metal. The basic structure of any material is called as, any crystalline material is called as unit cell. Unit, you know the meaning of unit, one. So this is the basic you can say basic unit of a crystal structure. So that's why it is called as unit cell. It is a block formed by arrangement of small group of atoms. ये वो ब्लॉक रहता है, ये एक छोटा सा ब्लॉक है. I'll show you in next figure. ये देखिए, ये है हमारा एक unit cell. Now this unit cell is formed by a regular arrangement of some a small group of atoms. जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर नीचे 4 है, तो ऐसे 8 एटम्स मिलकर ये क्या बना रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं. 3D में इसको हम क्यूब बोलते हैं. सो दैट्स वाई ये 8 एटम्स मिलकर एक रेगुलर अरेंजमेंट, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बना रहे हैं. इसको हम बोलते हैं क्यूब. ओके. जिसको हमने यहाँ पर क्यूब बोला है. सो यही क्यूब जो है या यही अरेंजमेंट जो है, इसको हम हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में बोलते हैं यूनिट सेल. दिस इज योर बेसिक और दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर स्ट्रक्चर. ओके. इट इज द स्मॉलेस्ट repeating unit or pattern which lattice is built, out of which lattice is built, is called as unit cell. जैसे हम फिज़िक्स जब स्टडी करते हैं तो हम स्टडी जब करते हैं फिज़िक्स, तो हमको बताया जाता है कि सेल जो है या एटम्स जो है, वो एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर वो और जुड़ते हैं, और फिर ऐसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होते जाता है. वैसे ही हमारे यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे छोटा यूनिट जो रहेगा वो रहेगा हमारा यूनिट सेल. और ऐसे नंबर ऑफ यूनिट सेल एक दूसरे से सब जुड़ते जाएंगे, उसको बोला जाएगा स्पेस लैटिस, उसको बोला जाएगा लैटिस. ओके. दैट इज कॉल्ड एज लैटिस. अब हम देखेंगे लैटिस कैसा बनता है.
Now space lattice is again a regular arrangement of infinite set of points. अभी हमारे पास में यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो कम नंबर्स में थे, जैसे कि 8 एटम्स हमने लिए थे पिछले यूनिट सेल में. ओके, अब यहाँ पर यही यूनिट सेल क्या होते जाएगा, रिपीट होता जाएगा, एक दूसरे से जुड़ता जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट होता जाएगा और वो फॉर्म करेगा स्पेस लैटिस. अब जब वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट उनका जो अरेंजमेंट है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअस है. जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा कि वो क्यूब है, तो वही क्यूब एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे, एंड देन दे विल फॉर्म or regular arrangement of an infinite set of points, and these points can be atoms, ions, molecules in a three-dimensional space, and that particular arrangement is called as space lattice. So this is your unit cell, this is one unit. ये एक यूनिट है, एक. अब ये एक यूनिट के 2 यूनिट हो गए, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए. ओके, देन अगेन अनदर वन इज कनेक्टेड, एक और कनेक्ट हो गया. अब यहाँ पर पहले 8 थे और बढ़ गए. ओके, ये और एक कनेक्ट हो गया. देन अगेन वन मोर इज कनेक्टेड, देन अगेन वन मोर इज कनेक्टेड, देन अगेन वन मोर इज कनेक्टेड, एंड हर बार क्या होते जा रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं. सो दिस 3-dimensional figure or this 3-dimensional arrangement of infinite number of atoms is called as space lattice. अब यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंगल रो लिया है. अब इसके पीछे भी बहुत सारे यूनिट सेल्स रहेंगे एक दूसरे से जुड़े हुए, इसके सामने भी, इसके राइट में भी, इसके लेफ्ट में भी. सो ऐसा ये इन्फिनाइट सेट ऑफ नंबर ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में, उसको बोला जाता है स्पेस लैटिस. नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा ये 8 एटम्स का बना हुआ था, एक क्यूब नज़र आ रहा था. इसी तरीके से कुछ और दूसरे एटम्स है जो अलग शेप में, अलग वे में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. तो यही हमको क्या करना है, हमारे इस पार्ट में टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में स्टडी करना है. एंड दिस इज पर्टिकुलरली फॉर मेटल्स. वी आर स्टडिंग दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली फॉर metals. Now the first crystal structure that we are going to study is simple cubic structure, which is similar to the previous figure. Now in this particular structure में, इस simple cubic structure में 8 atoms होते हैं. There are 8 atoms in it and they are connected with each other. Okay, and these atoms are present at corner of a cube. एक क्यूब के कॉर्नर पर ये 8 एटम्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. जैसे कि ये इस कॉर्नर पर एक एटम है एंड इट इज़ अगेन कनेक्टेड विथ 3 नेबरिंग एटम्स. उसके 3 नेबरिंग एटम्स से वो कैसा है, कनेक्टेड है. उसी तरीके से जब आप ये वाला एटम कंसिडर करेंगे, ये एटम उसके 3 नेबरिंग एटम्स से कनेक्टेड है. सो इन दिस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देर आर 8 corner atoms. You can say 8 corner atoms, and these corner atoms are connected with each other. Okay, now each corner atom is connected with 3 neighboring corner atoms. 3 neighboring corner atoms से वो कैसा है, connected है. Now this A is nothing but side of a cube. ये side है cube का, but here A represents the interatomic डिस्टेंस. 2 एटम्स के बीच का कम से कम डिस्टेंस जो रहता है, इसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय ए. ओके, अब ये क्यूब है तो क्यूब का हर साइड सेम है, इसके लिए इसका हर एक जगह पर जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो ए लिखा हुआ है. ओके, नाउ इन दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बट इन एक्चुअल ये जो लाइन है ये वहाँ पर हमको नज़र नहीं आएंगी. दिस कॉर्नर एटम्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर फेस टू फेस. ये जो है ये बिल्कुल चिपके हुए रहेंगे इस तरीके से. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ दी एक्चुअल टाइप ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. अब इसमें बीच में एक हल्का सा क्यूब बनाया है. ओके, और ये क्यूब फॉर्म कब हो रहा है, व्हेन वी आर कनेक्टिंग द सेंटर्स ऑफ
योर एटम्स विथ ईच अदर, सेंटर्स जो है एटम के उसको जब हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या तैयार हो रहा है, ये क्यूब का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है. बट इन एक्चुअल दीज आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को चिपके हैं, ये दोनों एक दूसरे को चिपके हैं. दिस टू आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, दिस टू आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये दोनों चिपके हैं. ओके, अब इस कॉर्नर एटम को ये और ये बिल्कुल चिपका हुआ है एटम. ओके, नाउ दिस इज योर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. और इस पर्टिकुलर एटम को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर एटम. दिस इज कॉल्ड एज कॉर्नर एटम. So for a simple cubic structure, remember that the structure is formed by 8 atoms which are present at a corner of your simple cube. Okay, cube के corner पर जब वो present रहते हैं तो वो form करते हैं हमारा simple cubic structure. Now this is very rare type of structure because इसके अंदर जो packing है, अब ये जो एटम्स है एक दूसरे से जिस किस्म से जुड़े हैं उसको हम बोलते हैं पैकिंग. मतलब उसकी डेंसिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कितना एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से उनका कनेक्शन कितना अच्छा है, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर पैकिंग. सो ये जो पैकिंग है इट इज़ वेरी पुअर काइंड ऑफ पैकिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 एटम्स यूज़ हो रहे हैं और वो भी कॉर्नर कॉर्नर पर है, तो काफ़ी दूर दूर रहते हैं. ओके, सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी रेयर and this is very poor packing and it is only seen in polonium which is having a structure of simple cubic. Okay, this is also called as SC structure, simple cubic structure. Now let's see another type of structure. The second one is body centered cubic structure. In this body centered cubic structure, similar to our simple cubic structure, there are 8 atoms present at corners of your simple cube, as well as there is one atom present inside the body of your cube. जो क्यूब का सेंटर है, क्यूब का जो बिल्कुल सेंटर है, इस बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट रहता है, एंड दैट पर्टिकुलर एटम इज अगेन कनेक्टेड विथ द रिमेनिंग कॉर्नर एटम. सो यहाँ पर हमको कनेक्शन देखने मिल रहा है. ओके, 8 कॉर्नर एटम्स रहेंगे, साथ ही साथ में बॉडी के बीच में एक एटम रहेगा. कितने एटम्स रहेंगे, एक. ओके, सो ये अकेला एटम क्या है, ये बाकी के 8 एटम से कनेक्टेड है. सो नाउ स्ट्रक्चर इज अगेन थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेशन ज़्यादा उनका स्ट्रांग हो गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ गए हैं. सो अगेन दिस स्ट्रक्चर इज लिटिल बिट पैक्ड एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस cubic structure. Okay, so this is your corner atom, this is your center atom, and this center atom is connected with every corner atom. ये सभी corner atom से चिपका हुआ है. एक्चुअल में आप जब उसका फिगर देखेंगे तो वो इस तरीके से नज़र आएगा. सो एक एटम को अगर आप बॉल कंसिडर करते हैं, छोटी सी पिंग पोंग की, जो हमारा टेबल टेनिस है इसकी बॉल अगर कंसिडर करते हैं, तो ये एक बॉल सेंटर में और ये बॉल हर कॉर्नर की बॉल से कैसी है, कनेक्टेड है. अब यहाँ पर ये सभी बॉल्स जो है दे आर सिमिलर. ओके, ये सेम है. यहाँ पर वाइट और रेड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग अलग है, दे आर सेम. यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल होना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर वाइट कलर यूज कर रहे हैं. ओके, सो दिस वन इज कनेक्टेड विद दिस. ओके, दिस वन इज अगेन कनेक्टेड विद दिस वन इज अगेन कनेक्टेड विद दिस. सो एवरी कॉर्नर एटम इज कनेक्टेड विथ centered atom. So this structure is called as body centered cubic structure. 8 corner atoms and 1 center atom, body center atom. Okay, this is the cross sectional view of this structure. ये cross sectional view है. ये बड़ा जो पूरा सर्कल है, this is your center atom. Then this one is one corner atom. ये एक कॉर्नर एटम है. ये इसके ऊपर वाले यूनिट सेल का दूसरा कॉर्नर एटम है. ये इसके लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर लेफ्ट साइड वाले यूनिट सेल का कॉर्नर एटम है. दिस वन इज फेस साइड के यूनिट सेल वाला कॉर्नर एटम है. सो दिस इज वन टाइप ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक दूसरे से 3 एटम्स कनेक्टेड है और वही एटम साथ ही साथ में हमारे जो सेंटर्ड एटम है उससे भी
कनेक्टेड है. ओके, सो दिस इज योर बॉडी सेंटर्ड टाइप ऑफ cubic structure, and this BCC structure is found in iron में दिखता है हमको. Then it is found in chromium, again it is found in tungsten, and as well as it is found in niobium. Okay, so all these metals, they are formed by body centered cubic structure. Okay, now the next one is face centered cubic structure. Now whenever I am saying cubic, you remember that there will be some corner atoms. यहाँ पर corner atoms रहेंगे and there will be a cube formation. एक cube का formation रहेगा. Okay, so here is your face centered cubic structure. अब इसके cube के हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम है, तो ये ऐसे 8 एटम क्यूब पर आ जाते हैं. साथ ही साथ में इसके जो फेसेस रहते हैं क्यूब के, उसके सेंटर में, फेस के सेंटर में, आई एम नाउ कॉलिंग अ फेस. ये जो फेस है, टॉप का जो फेस है, मतलब प्लेन जो है टॉप का, इस प्लेन में एक एटम रहता है. इसके प्लेन में एक सेंटर में एटम रहता है. सो दैट इज़ योर फेस एटम. तो ऐसे कॉर्नर पर हमारे 8 और फेस के ऊपर 6 एटम्स हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं. सो दिस इज़ मोर डेंस. अब ये थोड़ा और डेंस होते गया क्योंकि यहाँ पर फेस पर एटम आ गए. तो ऐसे 6 और ये 8, तो 8 और 6 हमारे 14 हो गए. पहले बॉडी सेंटर्ड में हमने देखे 9 थे, सिंपल क्यूबिक में 8 थे. सो नंबर ऑफ एटम्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. तो स्ट्रक्चर इज़ गेटिंग डेंस, इट इज़ गेटिंग क्लोजली पैक्ड, क्लोज पैकिंग होते जा रही है. तो स्ट्रक्चर क्या होते जाएगा हमारा, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा. ओके, सो दिस इज़ योर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. जहाँ हमारे 4 कॉर्नर एटम्स, और इन चारों कॉर्नर एटम्स को कनेक्टेड हमारा ये टॉप का फेस वाला एटम, साथ ही साथ में इधर के 4 कॉर्नर एटम्स, और उसको कनेक्टेड हमारा ये फेस वाला कॉर्नर एटम, साथ ही साथ में हमारा लेफ्ट साइड का जो फेस है, इसके ये 4 कॉर्नर एटम्स, और ये बीच में कनेक्टेड हमारा फेस एटम. ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फेस एटम्स है और 8 कॉर्नर एटम्स है. And this is the cross-sectional representation of your face-centered cubic structure. आपके कॉर्नर पर 4 और सेंटर में एक एटम हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है. This structure is seen in aluminum, then copper, then it is also seen in gold and silver. Okay, and let's come to our last type of crystal structure, that is a hexagonal closed pack structure. Now here it is not cubic, here it is hexagonal. So your atoms will be arranged in a form of a 3D hexagon, or it is also known as hexagonal structure. तो जब हम hexagonal structure देखते हैं तो वो structure कुछ इस तरीके से नज़र आता है. अब hexagon में 6 कॉर्नर्स रहते हैं, बराबर है. तो 6 कॉर्नर्स पे हमारे ये 6 एटम आएंगे. ओके, जब आप हेक्सागोन को 3D में जब आप इमेजिन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है. तो हमारे पास में 2 हेक्सागोनल फेसेस रहती है. सो ये टॉप की एक हेक्सागोनल फेस और ये बॉटम वाली हेक्सागोनल फेस. ओके, और साथ ही साथ में 6 हमारे रेक्टेंगुलर फेसेस रहते हैं. 6 रेक्टेंगुलर फेसेस रहते हैं, जैसे ये वाला है. ओके, ये वाला है, ये दूसरा है, ऐसे 3 और बैक साइड में है. सो ऐसे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 हमारे क्या है, हेक्सागोनल फेसेस है. तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जो हेक्सागोनल फेस रहेंगे, इसके कॉर्नर पर 6 एटम्स रहते हैं. साथ ही साथ में इसके सेंटर में एक एटम रहता है. तो कॉर्नर के 6 और ये एक 7. ओके, तो ऐसे 7 एटम्स इसके हेक्सागोनल फेस पर रहते हैं. जैसे ये टॉप का फेस है तो इसके कॉर्नर पर ये 1 2 3 4 5 6 और ये सेंटर वाला 1. ओके, तो ये हो गए हमारे 7 टॉप वाले हेक्सागोनल फेस पे. साथ ही साथ में बॉटम वाला जो हेक्सागोनल फेस है उसके ऊपर भी 7 रहेंगे, कॉर्नर पे 6 और फेस के सेंटर पे 1. ओके, 7 और 7 14 हो गए. और साथ ही साथ में इसकी जो बॉडी है, मतलब जो बॉडी का सेंटर है, इस सेंटर में 3 और एटम्स रहते हैं. These are also body
you can say center atoms, and these center atoms are present inside the body of a hexagonal structure. Now there are 7 on top, 7 on bottom and 3 in the middle. So it is like a layer, एक दूसरे के ऊपर layers का stacking बन रहा है, stacking हो रहा है, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, इस तरीके से क्या है हमारा यहाँ पर लेयर्स बन रहा है. तो ये 7 वाला लेयर, ये 3 वाला लेयर, ये 7 वाला लेयर, इसके नीचे जो दूसरा यूनिट से कनेक्ट होगा उसमें फिर से 3 रहेंगे, उसके नीचे वाले में 7 रहेंगे, फिर से उसके नीचे वाले में 3, फिर उसके नीचे वाले में 7 रहेंगे. एंड लाइकवाइज ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पेस लैटिस में कन्वर्ट होता जाएगा. ओके, नाउ दिस इज हैविंग मोर नंबर ऑफ एटम्स. 7 + 7 14 + 13 + 3 is your 17. तो इसमें टोटल 17 एटम्स प्रेजेंट है. 3 in the middle, 7 in the top, 7 in the bottom. So it is like this. So this is your stacking order. इसको stacking order बोलते हैं, मतलब लेयर का ऑर्डर. So इसकी A लेयर में 7 एटम्स है, जो कॉर्नर में 6 है और सेंटर में 1 है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. देन B वाला जो स्टैक है, B वाला जो लेयर है, इसमें 3 है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. फिर से इससे सिमिलर स्ट्रक्चर है तो इसके लिए इसको वापस से A नाम दिया है. तो 6 कॉर्नर पर और एक 7वां सेंटर में. सो इसका जो स्टैकिंग ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से है, ए बी ए बी ए बी. ओके, सो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय ए बी ए. ओके, so this is your closed pack structure. Now for more simplification I am using this particular slide. So you can see this is your A sides. A side पर 6 कॉर्नर पर एक सेंटर में, they are all connected with each other. Then this is your B side, okay, also known as body side, and it is having 3 in middle. Then again your A side which is having again 6 corner and 1 center atom. Okay, now this is your ABA stacking order. This is 2D projection, this is 3D projection. Now if you view this particular 3D projection from top, you will see this rings. ये जो लाइट कलर का ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर है, they represent A layer. The blue one represents B layer, and again the dark green color represents A layer. So this is your type of crystal structure, and this hexagonal closed pack HCP type of crystal structure is found in beryllium, cadmium, magnesium, titanium, zinc and zirconium. Okay, now this was all about the type of crystal structures. Thanks for watching this video. Please stay at home, stay safe, keep learning, and do not go outside until and unless it's very necessary. Thank you.